Hello everyone, welcome to your PD and this is Shubhya. So are you facing difficulty in learning the words of vocabulary? If yes, so in this video I'm going to provide you a solution for that. Now basically whenever you have a problem in learning the words, mnemonics is the smartest trick through which you can learn the words and that can retain in your mind for a longer time also. What is mnemonic? So basically mnemonics is a kind of, you can say, a memorizing technique where you associate an idea with the word and then it helps you to recall it out. So in this video, I'm going to help you learn a good number of words that are actually going to help you in your preparation strategy. One assurance of mine is that by the end of your video, I'm sure that you are going to learn all the words which I'm going to list in this video of mine. So basically stay tuned till the end of this video, and vocabulary is very important in your examination. So showcase a good emphasis. You just have to devote a fixed time towards vocabulary, and this is going to be a smartest technique through which you can learn the words of vocabulary. Let's get started. How I'm going to teach you the words with vocabulary through mnemonics. The very first word is abrogate. Abrogate. Divide, cut this word. Abrogate. You are associating it, bro, gate. Bro, get out of the gate. Gate, whenever it is a gate, that is, it is a kind of authority, right? Suppose your parents lock the door at 9 p.m., 10 p.m., whatever it is. You have to build up an idea in your mind. So, abrogate. So, basically what we are learning is, we need to gate this Lord law out. हमें ये law खत्म करना पड़ेगा कि पापा रोज 10 बजे गेट को बंद कर देते हैं. Let's end this law now. Bro, gate. पीजी वाली आंटी इतने बजे गेट बंद कर देती है, हमें ये लॉ को कट करना पड़ेगा. सो बेसिकली व्हेन इट इज अबाउट एब्रोगेट, गेट आ गया, दैट इज कोई अथॉरिटी है जो बंद कर रही है, हमें मिलकर उसके अगेंस्ट मतलब उसको खत्म करना है. सो इट इज टू रिपील और डू अवे विद द लॉ. दैट इज समथिंग फॉर्मल एग्रीमेंट. किसी लॉ से, किसी बिल से आप क्या कर रहे हो, गेट रिड हो रहे हो. तो दैट इज बेसिकली अबॉलिशिंग. इट इज एंडिंग ऑफ अ फॉर्मल लॉ और सम काइंड ऑफ एन agreement. I hope the first word is clear. Bro, gate, gate आपकी मर्जी है. You have to remember it through your father or a PG वाली आंटी or something else. So it is going to help you. Bro, gate बंद करना है. अब वो पुराना लॉ हमें खत्म करना है कि 10 बजे ही एंट्री चाहिए, उसके बाद भी चाहिए हमें एंट्री. So that is abrogate. That is to end, or you can say to get away with, to getting rid of any kind of a formal agreement, or you can say the law or the right. So formally, authoritatively it is used. I hope the first word is clear. Let's go with the second word. That is adroit. Adroit का वैसे मतलब होता है someone who is very clever, very smart, very intelligent. मतलब it's a positive word. How to remember it out is adroit. Draw it. मतलब इसमें draw है. ड्रॉ हमेशा कोई क्रिएटिव पर्सन या कोई स्किलफुल पर्सन ही कर सकता है. सो एड्रॉइड में ड्रॉ आ जाता है. ड्रॉ क्या होता है, कोई स्किलफुल पर्सन, किसी के अंदर स्किल्स है ड्रॉ करने के लिए. अब आप लोगों की ड्राइंग अच्छी है नहीं अच्छी, आई डोंट नो, बट इफ यू आर गुड इन ड्राइंग दैट मीन्स यू आर एंड्रॉइड पर्सनैलिटी. नाउ डू नॉट गेट कंफ्यूज दो, सिर्फ ड्राइंग्स के लिए नहीं आता, ये आपको लर्न करने के लिए था कि जो पर्सन क्रिएटिव हो, इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एड्रॉइड. तो द वेरी फर्स्ट वर्ड वॉज एब्रोगेट. गेट बंद कर देना, किसी चीज़ के पुराना जो लॉ है वो हमें ख़त्म करना है, उससे गेट रिड ऑफ होना. और सेकेंड है एड्रॉइड. एड्रॉइड मीन्स ड्रॉ करना, क्रिएटिव होना, स्मार्ट होना. सो दैट इज एड्रॉइड. लेट्स गो विद द थर्ड वर्ड. दैट इज ऑडेशियस. ऑडेशियस का मतलब होता है कोई पर्सन जो बहुत ज़्यादा ब्रेव है. ना टॉक अबाउट ऑडेशियस. ऑडेशियस को ब्रेक करो, क्या दिख रहा है, ऑडी दिख रही है. अब ऑडी वाली गाड़ी है हमारे पास, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, उसको ड्राइव कर रहे हैं. ब्रांड न्यू गाड़ी है. ऑडेशियस गर्ल ड्राइविंग हर ब्रांड न्यू ऑडी. तो मतलब शी इज टेकिंग अ रिस्क कि पता नहीं कैसे चलेगा, या फिर होपफुली इट विल बी अ गुड वन. इट कैन बी बॉयज, इट कैन बी गर्ल्स. सो एनीवन हु इज ड्राइविंग द कार, सो इट इज टेकिंग एन ऑडी कि भाई एक्सीडेंट ना हो जाए. तो पर्सन बहुत रिस्की है, जो डेयरिंग है, जो ये काम कर रहा है. तो ऑल यू हैव टू रिमेंबर इट आउट. ऑडी गाड़ी रिस्की है चलाना क्योंकि हमें नहीं आती है. सो दैट इज ऑडेशियस. ऑडेशियस इज वन हु इज विलिंग टू टेक द रिस्क, दैट इज टर्म्ड एज ऑडेशियस. एब्रोगेट, जो गेट को बंद करना है, पुराने लॉ को हमारे खत्म करना है, उससे गेट रिड होना है. एड्रॉइड, एक स्मार्ट पर्सन है, ड्राइंग तो किसी स्मार्ट पर्सन को ही आती है, तो दैट इज एड्रॉइड. थर्ड पर्सन थर्ड वर्ड कौन सा था हमारा, दैट इज ऑडेशियस. ऑडी गाड़ी हम सड़क पे लेकर जा रहे हैं, रिस्क कर रहे हैं भाई, तो हम बहुत डेयरिंग हैं, हम बहुत बोल्ड हैं, हम बहुत फियरलेस हैं, तो दैट इज ऑडेशियस. 3 वर्ड्स क्लियर हुए.
नेक्स्ट आ जाता है बेनीवोलेंट। बेनीवोलेंट में बेनी का जो रूट वर्ड आता है ना, बेनी का मतलब ही क्या होता है, दैट इज समवन हु इज वेरी काइंडली एंड वेरी फ्रेंडली। ठीक है, तो बेनी मतलब क्या आ जाता है, एक अच्छा वर्ड है, रूट वर्ड का मतलब क्या है, गुड, और बेनीवोलेंट का मतलब क्या है, जो बहुत ज्यादा काइंड है हमारे साथ। दो बेनी बहुत डिफरेंट वेज में यूज किया जाता है, बेनीवोलेंट यूज किया जाता है, बेनाइन यूज किया जाता है, बेनिडिक्शन यूज किया जाता है, बेनिफिशेंस यूज किया जाता है, बेनिफिकेंट यूज किया जाता है। जब भी तुम्हारे पास बेनी लग जाएगा ना, ये तुम रूट से याद कर लो कि बेनी का मतलब ही अच्छा होता है। तो अगर 4 ऑप्शंस मिलते हैं तो जो पॉजिटिव वर्ड होगा वो उसका आंसर होगा। तो बेनीवोलेंट का मतलब क्या हो गया, जो दोस्ती निभाता है, जो बहुत काइंड है, राइट। वॉलेंट है वॉलंटरी, अपनी मर्जी से। बेनी गुड, वॉलेंट वॉलंटरली अच्छा कर रहा है, सोशल है, सबकी हेल्प करता है, दैट इज टर्म्ड एज बेनीवोलेंट। आई होप दिस वर्ड इज क्लियर। यहाँ पे कुछ और वर्ड्स लिस्टेड हैं, ये डॉक्यूमेंटेशन पैनल पे अवेलेबल है, यू कैन गेट द डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम देयर, जिससे आपको और भी वर्ड्स रिवाइज करने में हेल्पफुल हो जाएगा। आई विल बी जस्ट बोरिंग यू सम ऑफ द मेजर वर्ड्स राइट नाउ। नेक्स्ट आ जाता है बिनाइन। B9 को याद कैसा करना है, B9 है, ठीक है। 9 किससे पास में मिलता है, नाइस से, तो मतलब बी नाइस, B9 बी नाइस, B9 बी नाइस। तो बिनाइस क्या आ जाता है, किसी के साथ अच्छा करना, कंप्लीट होना, काइंड होना किसी के साथ। तो मतलब हम क्या हैं, अपनी अप्रोच में बहुत ज़्यादा जेंटल और काइंड है, हम फार्मफुल नहीं है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ बिनाइन। बिनाइन एक तरह के तुम न्यूमरोलॉजी से अटैच करना है, तो दैट इज 2025 भी तो 9 पे है और 2025 हमारे लिए अच्छा चल रहा है, तो दैट इज टर्म्ड एज बिनाइन, मतलब बी नाइस, सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं। सो समथिंग इज वेरी जेंटल एंड काइंडली, नॉट हार्मफुल इन अफेक्ट। अब तक हमने 5 वर्ड्स कर लिए हैं एंड अ लिस्ट ऑफ फ्यू वर्ड्स मोर, एंड आई होप 5 वर्ड्स याद हो गए। एब्रोगेट क्या होता है, लॉ को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, हमने गेट अवे कर लिया। बिनाइन, बी नाइस, नाइस हो जाओ, मतलब सब कुछ काइंड है। बेनीवोलेंट, बेनी गुड, वॉलेंट वॉलंटरली, हम वॉलंटरली अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं, सबकी हेल्प करते हैं, हम तो है ही अच्छे। ऑडेशियस, ऑडी गाड़ी, रिस्क ले रहे हैं, तो दैट इज पर्सन हु इज डेयरिंग, हु इज टेकिंग द रिस्क। एक और वर्ड हमने किया था, दैट इज, आई एम गोइंग टू रिपीट इट आउट, इज एड्रॉइड, मतलब तुम ड्राइंग में बहुत स्मार्ट हो, तो दैट इज एड्रॉइड। 5 वर्ड्स हो गए, लेट्स गो विद कैप्रीशियस। अब कैप्रीशियस में कैप है और रिच भी लग रहा है मुझे, है ना, तो कैप्रीशियस मतलब कैप रिच अस। कोई रिच पर्सन के बारे में सोचो जो बहुत ज्यादा कैप डाल के निकलता है, तो मतलब उसके मूड्स क्या होंगे, वो कभी कोई फेसेस बनाएगा, कभी कोई फेसेस बनाएगा फोटो खिंचवाने के लिए। सो दैट इज समवन, जस्ट अ वर्ड टू रिमेंबर, कैप्रीशियस, कैप डाली है, कोई पर्सन है जो रिच है, दैट इज अस, दैट इज, थिंक ऑफ अ रिच पर्सन, जैसे ट्रम्प का ले लो, वेयरिंग ऑफ द कैप इज देयर, और वो कितना डिफरेंट वेज में एक्ट कर रहा है इसमें, राइट। तो मतलब उसके मूड में जब चेंजेस आ रहे हैं, बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज टर्म्ड एज कैप्रेशियस। कैप्रेशियस, कैप रिच, कैप डाल के, फेसेस डाल के फोटो कराना, और उससे क्या होगा, दैट इज आपके मूड चेंजेस हो रहे हैं, आप कभी कोई मूड दिखा रहे हो, आपकी सडन चेंजेस ऑफ इमोशंस हो रहे हैं, तो दैट इज टर्म्ड एज कैप्रेशियस। नेक्स्ट आ रहा है शार्लटन। शार्लटन आ रहा है, सो शार्लटन में फर्स्ट थिंग आएगी, दैट इज पर्सन हु इज फॉल्सली, मतलब आप सोचो, इसको ब्रेक कर लो, शार्लटन, 4 लातें आ जाती हैं, 4 लातें किसी की होती हैं, नहीं होती हैं 4 लातें, तो मतलब ये क्या है, ये तो फ्रॉड है, कोई झूठ बोल रहा है। तो दैट इज, शार्लटन मीन्स समवन हु इज एक्चुअली अ फॉल्स, who is lying, we are accusing that person of that thing, right? So charlatan means something that is false, something that is not true, so that is charlatan. A person falsely claiming to have a special knowledge or skill. कोई बोलता है मेरे को बहुत इंटेलिजेंट हो और एक्चुअल में हो ही ना, तो दैट इज शार्लटन। अब मैंने आपको लर्न करवा दिया, ये तो बिल्कुल ही नहीं भूलना चाहिए, 4 लातों से याद कर लो, 4 लातें हैं, 4 लेग्स हैं, किसी की नहीं होती हैं। अगर कोई पर्सन बोले मेरी 4 लेग्स है, तो वो भाई तुम फ्रॉड हो, तुम झूठे हो, तो दैट इज शार्लटन। लेट्स गो विद द नेक्स्ट वर्ड नाउ, दैट इज कॉपियस। कॉपियस से क्या याद आता है, कॉपी याद आती है, और कॉपियस से बहुत ज़्यादा कॉपीज याद आती हैं। जब बहुत ज़्यादा कॉपीज है, मतलब कोई चीज़ है बहुत ज़्यादा अमाउंट में पड़ी है, तो कोई भी चीज़ जब ज़्यादा अमाउंट में है, एक्सेसिव अमाउंट में है, दैट इज टर्म्ड एज कॉपियस। कॉपियस का मतलब क्या आ गया, कोई चीज़ है जिसकी सप्लाई या फिर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी अबंडेंट है, इसको याद करने के लिए कॉपी अस, दैट इज कॉपीज बहुत ज़्यादा है हमारे लिए, तो अमाउंट बहुत ज़्यादा अबंडेंस में है। नेक्स्ट आ जाता है क्रेडुलस। क्रेडुलस में क्या है, इसका एक इजी वेज, 2 वेज याद कराती हूँ मैं। क्रेडुलस में क्रेडिट कार्ड पता है,
अब जब भी पैसे खत्म हो जाए तो किस पे रिलाई करते हो? क्रेडिट कार्ड पे रिलाई करोगे कि भाई पैसा खत्म हो गया तो क्रेडिट कार्ड तुम्हें हेल्प कर देगा। सो इसी वे में क्रेडुलस का मतलब और क्रेडिबल मैं दोनों को बता देती हूँ। क्रेडुलस का हो गया हैविंग और शोइंग टू ग्रेटर रेडीनेस टू बिलीव थिंग्स, मतलब कोई बड़ी जल्दी विश्वास कर लेता है। गलेबल है, कोई मतलब नेव है, नया नया बेचारा होता है जिसको क्रेडिट कार्ड मिल गया, उसको लगता है बस पैसे अपने आप ही वेट उसमें हो जाएंगे, बट एट लास्ट आपको रीपे तो करना ही पड़ेगा ना। सो दैट इज क्रेडुलस का मतलब है जब आप बहुत जल्दी क्या हो, किसी की बातों में आ जाते हो, क्रेडुलस। दैट इज फॉक्स क्रेडिटलेस है, क्रो क्रेडुलस है यहाँ पे। जैसे क्रेडुलस मतलब बहुत जल्दी किसी बातों में आ जाना, तो अगर क्रेडिट कार्ड है तो बातों में नहीं आना कि तुम्हें पैसे बाद में देने पड़ेंगे। तो क्रेडुलस मीन्स दैट इज यू आर गलेबल, यू आर नेव, यू आर न्यू पर्सन, यू आर जस्ट एन इमेच्योर, you don't know and you come in the tricks of the other person very easily, right? So you believe something very easily, that is termed as credulous. Next आ जाता है dearth. dearth क्या होता है? That is de-earth. अब हमारी अर्थ में तो भाई बहुत ज़्यादा लैक ऑफ रिसोर्सेज चल रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन चल रही है, तो दैट इज स्कार्सिटी और लैक ऑफ थिंग्स। डी अर्थ, डी हो रही है, दैट इज इट इज गेटिंग डिमोलिश्ड, डिस्ट्रक्टिव। सो ऑल दीज थिंग्स आर डर्थ का मतलब है कमी होना, किसी चीज की कमी होना, दैट मीन्स डर्थ। आई होप ये 10 वर्ड्स क्लियर है। दोबारा एक बार रिवाइज करते हैं बिफोर आई मूव विद द नेक्स्ट ऑफ द वर्ड्स। पहला वर्ड था एब्रोगेट, गेट लगा दिया है आंटी ने, मतलब चेंज करना पड़ेगा लॉ को, तो पुराने लॉ से दूर हो जाना, खत्म करना, दैट इज एब्रोगेट। सेकेंड आ गया एड्रॉइड। एड्रॉइड इज समवन जिसको ड्रॉ करना चाहता है, मतलब वो बहुत क्रिएटिव है, मतलब वो पर्सन स्मार्ट है, तो एड्रॉइड स्मार्ट पर्सन। ऑडेशियस, ऑडी चलानी अगर आती है तो मतलब द पर्सन इज ड्राइविंग एन ऑडी ऑन द रोड, मतलब ही इज वेरी डेयरिंग, वेरी रिस्की टेकिंग द स्टफ, सो दैट इज ऑडेशियस, डेयरिंग, राइट? सो दैट इज विलिंग टू टेक रिस्क। बेनीवोलेंट, बेनी इज अ गुड वर्ड, वॉलेंट मीन्स वॉलंटरली, जब आप वॉलंटरली किसी के साथ अच्छा कर रहे हो, फ्रेंडली कर रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो, दैट इज बेनीवोलेंट। B9, B9 कहाँ से मैच कर रहा है? बी नाइस से। 9 किसको मैच करा? 2025 को, मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है, जेंटल चल रहा है, सब कुछ सही है, तो दैट इज B9, दैट इज एवरीथिंग इज नाइस एंड गुड, नॉट हार्मफुल, राइट? नेक्स्ट इज कैप्रिशियस। कैप डाल के कोई रिच पर्सन है और याद आना चाहिए ट्रम्प। ट्रम्प ने मल्टीपल फेसेस बनाए थे, तो मतलब मूड क्या हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, तो सडन चेंज इन बिहेवियर एंड मूड इज टर्म्ड एज कैप्रिशियस। देन नेक्स्ट शार्लेटन। शार्लेटन क्या आ गया? शार्लेटन बोलता है मेरी चाल आते हैं, मतलब चाल आते तो एग्जिस्ट नहीं करेंगी, तो मतलब वो पर्सन क्या है? फेक है, फ्रॉड है, झूठा है, तो दैट इज शार्लेटन। नेक्स्ट क्या आ गया? कॉपियस। कॉपियस मतलब बहुत ज्यादा कॉपीज, जब बहुत ज्यादा कॉपीज है मतलब ह्यूज है, अमाउंट लार्ज अमाउंट है, दैट इज टर्म्ड एज कॉपियस। क्रेडुलस, क्रेडुलस में क्रेडिट आ रहा है, क्रेडिट कार्ड पे हम विश्वास कर लेते हैं कि वो अपना पैसा पे कर देगा, नहीं, तुम्हें रीपे करना है, मतलब तुम नेव हो, तुमने पहली बार यूज किया है, तो क्रेडुलस इज जब आप बहुत जल्दी बातों में आ जाते हो, विश्वास कर लेते हो, दैट इज क्रेडुलस। डर्थ, डी अर्थ, दैट इज अर्थ में चीजों की कमी होना, स्कार्सिटी होना, दैट इज डर्थ। क्या हो रही है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन या स्कार्सिटी हो रही है। नेक्स्ट इज डेलिनेट। डेलिनेट क्या होता है? अब लाइन आ रहा है इसमें, तो लाइन क्या है? जब आप किसी चीज को लाइन मार देते हो, डिस्क्राइब करते हो, बाउंड्री हिट कर देते हो, जब आप दी लाइन इज ड्रॉन, डेलिनेट, दैट इज लाइन इज ड्रॉन, तो बाउंड्री बनाना चीजों के लिए, दैट इज टर्म्ड एज डेलिनेट। टू डिस्क्राइब और ड्रॉ समथिंग इन ग्रेट डिटेल, बाउंड्री बनाना किसी चीज की, दैट इज डेलिनेट। नेक्स्ट आ रहा है एफर्मल। एफर्मल, ये बहुत रिपीटेडली वर्ड भी बहुत पूछा जाता है। एफर्मल, ईथर पता है? ईथर इफर्मल से रिलेटेड करना पड़ेगा। अब एफर्मल में क्या आ जाता है? ईथर बड़ी जल्दी वैनिश हो जाता है, स्पिरिट भी बड़ी जल्दी लीव कर जाती है बॉडी में, मतलब जो चीज़ बहुत टेम्पररी है ना, कुछ टाइम के लिए एग्जिस्ट करती है, दैट इज टर्म्ड एज एफर्मल। एफर्मल, मल मतलब एट द लास्ट, तो यू हैव टू मल इज यू डाइट आउट, राइट? तो एफर्मल को याद कर लो, दैट इज जब कोई ई से ईथर याद कर लो, ईथर बहुत जल्दी वैनिश हो जाता है, सोल भी स्पिरिट को छोड़ जाती है, तो दैट मीन्स कोई चीज़ जो टेम्पररी है, दैट इज टर्म्ड एज एफेमर। ओके, नेक्स्ट इज एरोडाइट। अब भाई ये तो मनमोहन सिंह जी को आप याद कर लीजिए। एरोडाइट में क्या आ जाता है? जो पर्सन बहुत ज़्यादा एजुकेटेड और ब्राइट आ जाता है, जिसके पास बहुत नॉलेज है, बहुत ब्राइट है। एरोडाइट, डाइट ब्राइट, एरोडाइट, दैट इज अ पर्सन हु इज ब्राइट, एजुकेटेड पर्सन, so that is person who is having a lot of knowledge, that is termed as erudite. scholar है कोई, that is termed as erudite. तो erudite भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ रहा है fallacious। fallacious मतलब फॉल्स लग रहा है हमें,
फॉल्स लॉजिक विल फॉल, फॉलेशियस फॉल्स, तो मतलब कोई गलत है, फॉलेशियस में ही फॉल है, गिरना मतलब जब आप झूठ बोलोगे तो आप गिरोगे, ठीक है, कोई रॉन्ग आइडिया है तो भी गिरोगे आप, तो मतलब जब आप कोई मिस्टेक कर रहे हो, कोई बिलीफ है जो अनसाउंड है, दैट इज टर्म्ड एज फॉलेशियस, फॉलेशियस गिरना, और गिरते कब है, जब हम झूठ बोलते हैं, राइट, तो कुछ गलत चीज पे, फॉल्स चीज से, जैसे रॉन्ग आइडिया पे, रॉन्ग बिलीफ पे फेक है, दैट इज टर्म्ड एज फॉलेशियस। नेक्स्ट है फास्टिडियस, फास्ट और टीडियस, फास्ट मतलब बहुत तेज तेज, टीडियस मतलब जो मेहनत करने वाला, उससे याद कर लो, मतलब जो पर्सन बहुत ज़्यादा अटेंटिव होता है और छोटी छोटी चीज़ों पे डिटेल पे कंसंट्रेट करता है, वेरी कंसर्न्ड अबाउट क्लीनिनेस, स्पेशली सफाई को लेकर बहुत ज़्यादा, जैसे कई लोग को ओसीडी होती है ना, दैट इज दे हैव टू कीप द थिंग्स क्लीन, स्ट्रक्चर में रखना है, उसको फास्टिडियस में रख लो। फास्ट मतलब उनको जैसे ही गन पड़ता है वो साथ में साथ सफाई करनी शुरू कर देते हैं। So fastidious is person who is very meticulous, very fast in his approach, and who is actually carrying concerns about the small detailings, that is termed as fastidious. Next आता है garrulous, garrulous जो गर 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 सारा टाइम बोलने वाला, तो garrulous is जो बहुत ज़्यादा बोलता है and particularly not building any sense, that is termed as garrulous. तो बेसिकली इट इज व्हेन यू आर ह्यूज टॉकेटिव, व्हेन यू आर चैटरबॉक्स, अगर टीचर्स ने पॉइंट किया है आपको कि कीप ऑन स्पीकिंग एंड दैट टू इररिलेवेंट स्टफ, दैट मीन्स यू आर गैरुलस इन नेचर, यू आर चैटरबॉक्स, यू आर लोकेशियस, बहुत वर्ड होते हैं लेकिन अभी तुम सिर्फ गैरुलस याद कर लो। गैरुलस भी कैसे, गर्राना से, गर्र से याद कर लो, दैट इज गैरुलस, दैट इज बीइंग वेरी टॉकेटिव। नेक्स्ट इज योर ग्रिगेरियस, ग्रिगेरियस मतलब है जैसे जीआरई का एग्जाम है और आपको बहुत ज़्यादा कंट्रीज में एडमिशन मिल जाती है जीआरई के एग्जाम से, ग्रिगेरियस में जीआरई आ गया, जीआरई का एग्जाम पता होगा, तो जीआरई एग्जाम से आपको बहुत ज़्यादा कंट्रीज में एडमिशन मिलती है, मतलब आप बहुत पर्सन जो हैं जो सोशल आ जाते हैं, दैट इज ग्रिगेरियस। जब आप सोशेबल हैं, जब आप दूसरों की कंपनी को एंजॉय करते हैं क्योंकि आप दूसरी कंट्रीज में जाके घूमना, एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, दैट इज टर्म्ड एज ग्रिगेरियस। नेक्स्ट इज गाइल, गाइल क्या आ जाता है, जी यू लाई, जी यू लाई टू मी मतलब कनिंग, इंटेलिजेंट, ability to be clever but by using dishonest means। अब जो गाइल में ही lie छिपा हुआ है, गाइल, you are a liar, you lie, so गाइल, you lie, so you lie means जब आप किसी के साथ क्लेवर हो बट बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव कॉन्स्टेंट से, राइट, तो जब आप किसी को ट्रिक करते हो, मैन्युपुलेट करते हो, दैट इज टर्म्ड एज गाइल। तो मतलब कनिंग, इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंस होना और क्लेवर होना, लेकिन आप गलत वेज यूज करते हो, दैट इज गाइल और नेगेटिव टर्मिनोलॉजी। अगला आ जाता है हेजीमनी, हेजीमनी मतलब भाई हमारे पास हैगी मनी, सो हैगी मनी मतलब यू हैव मनी, तो अगर मनी है तो मतलब आपके पास डोमिनेंस है, पावर है, सो ऑब्वियसली लीडरशिप है, डोमिनेंस है, स्पेशली बाय वन कंट्री और सोशल ग्रुप ओवर अदर्स आ जाता है, तो हैगी मनी, एंड इफ यू हैव मनी तो यू आर पावरफुल, यू आर डोमिनेंट एंड द ग्रुप इज डोमिनेंट ओवर द अदर पार्ट और ओवर अदर्स, राइट, सो दैट इज हैगी मनी। नेक्स्ट इज 20th, दैट इज हीनियस, हीनियस से हाइना याद कर लो, हाइना भी बहुत ज़्यादा क्या है, विकेड है, बहुत तेज होती है, सो हीनियस इज, हीनियस जैसे होता है ना, दैट इज समवन दैट इज वेरी विकेड क्राइम, हम बोलते हैं ये विकेड क्राइम, हीनियस क्राइम कमिट किया, मतलब समवन वेरी शॉकिंग, वेरी सरप्राइजिंग, एंड दैट टू इन अ वेरी शार्प सेंस, कनिंग, जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे शायद, जैसे कई बार हम बोलते हैं कि दैट्स अ वेरी हीनियस क्राइम व्हेन अ पर्सन इज कटिंग द पर्सन्स बॉडी इनटू पीसेस एंड ऑल दैट, सो ऑब्वियसली दैट इज अ हीनियस क्राइम। सो हीनियस क्या आ जाता है, हाइना से याद करना, बहुत विकेड, बहुत तेज होना, बहुत ऑडियस होना, अटरली ऑडियस, दैट इज समथिंग यू कैन नॉट बिलीव एंड इट इज वेरी शॉकिंग इन अ बैड सेंस। नेक्स्ट इज इम्पेड, एम्पेड, स्टैम्पेड, एम्पेड ड्यू टू स्टैम्पेड मतलब भाई देरी हो गई है, हिंड्रेंस आ गई है बहुत ज़्यादा क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है आज यहाँ पे, तो एम्पेड, स्टैम्पेड, जब मैं हिल ही नहीं पा रही हूँ तो दैट मीन्स रश बहुत ज़्यादा है, तो मेरे पाथ में क्या आ रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, जब मेरे पाथ में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं तो मतलब आई कैन नॉट मूव, आई हैव डिफिकल्टी इन मूविंग, दैट इज टर्म्ड एज एम्पेड, तो मतलब किसी को हिंडर करना, स्टॉप करना, दैट इज एम्पेड। नेक्स्ट क्या आ गया, इंसीडियस, इंसीडियस होता है मतलब इनसाइड, भाई इनसाइड बहुत हार्मफुल केमिकल्स हैं, प्रोसीडिंग इन अ ग्रेजुअल सटल वे बट विद हार्मफुल इफेक्ट्स,
मतलब इंसीडियस, इनसाइड, इस बंदे के इनसाइड बहुत हार्मफुल चीज़ें हैं। तो इंसीडियस, इनसाइड मतलब हार्मफुल चीज़ें होना। ग्रेजुअली क्या है, उसके अंदर ये क्या है, प्रोसीड कर रहा है। हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं, बढ़ रहे हैं। तो इनसाइड हार्मफुल केमिकल्स हैं, प्रोसीड करना, धीरे धीरे स्टार्ट होना ग्रेजुअल इफेक्ट से, और हार्मफुल इफेक्ट्स होना उस चीज़ के, दैट इज इंसीडियस। मतलब एक ग्रेजुअली आप क्या कर रहे हैं, हार्म की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट जॉवियल। जॉवियल तो आपके लिए जॉय वर्ड आ ही रहा है, जॉली, जॉवियल, जॉयफुल, तो ये सारे वर्ड्स हैं जॉवियल, जॉय से आ जाते हैं। व्हेन अ पर्सन इज इन जॉय, ही इज वेरी चीयरफुल, वेरी हैप्पी, सो दैट इज टर्म्ड एज जॉवियल। जॉवियल इज चीयरफुल एंड हैप्पी। नेव, नेव कहाँ से एसोसिएटेड आ गया, नेव है कोई पर्सन, दैट मीन्स कोई पर्सन डिसऑनेस्ट है। अब नेव में केव, नेव और केव पास पास में लगा लो। सपोज कर लो कोई केव में पर्सन छुप के बैठा है, तो ऑब्वियसली वो कोई अनस्क्रपलस थिंग्स, मतलब कोई वो नेगेटिव चीजें कर रहा है, तो दैट इज अ पर्सन इज डिसऑनेस्ट मैन। तो केव के अंदर कोई आदमी बैठा है, दैट इज अ डिसऑनेस्ट पर्सन। केव, दैट इज नेव बोलते हैं इसको, एंड नेव इज सिमिलर टू केव। केव में जब आप कॉर्नर पॉलिसी होती है तो यू आर डूइंग द रॉन्ग थिंग्स, दैट मीन्स यू आर अ डिसऑनेस्ट पर्सन, सो उसके लिए आ जाता है नेव, आ जाता है। लास्ट हम एक और करते हैं, बट देन आई विल बी रिपीटिंग इट आउट, और कुछ और वर्ड्स भी याद करेंगे अभी हम। दैट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज चीज होती है जब बहुत पर्सन स्लो होता है। थिंक ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज। लैंग्वेज भी होता है जब आप जेल में हो, आप लैंग्वेज कर रहे हो, मतलब आप जेल से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप बहुत स्लो हो, बहुत रिलैक्स हो, आप कुछ नहीं करना चाहते हो, मतलब लैंग्वेज भी आ जाता है एक तरह के लेजी हो, राइट। सो यू आर लॉन्गिंग फॉर दैट, यू वांट टू डू समथिंग कि मैं ये करूंगा, पर तुम एक्चुअल में कुछ नहीं कर रहे हो, तो दैट इज यू आर नॉट डूइंग एनी एफर्ट्स फॉर दैट थिंग, एनी फिजिकल एफर्ट्स, ऑब्वियसली यू आर लेजी इन दैट अप्रोच। लेट्स रिवाइज ऑल द 25 वर्ड्स जो पहले हमने किए हैं, एंड आई होप आपको 25 में से वर्ड्स सारे याद हो गए हो, बिकॉज बहुत ईजी थे। द वेरी फर्स्ट इज एब्रोगेट। गेट लगा देना, मतलब कोई अथॉरिटी है उसको मैंने क्या कर दिया है कि मैं उसको नहीं मानूंगी, मैं उससे गेट रिड हो गई हूँ, तो अबॉलिशमेंट करना किसी पुरानी एक्टिविटी या लॉ को। एड्रॉइड, ड्रॉ कर पा रहा है वो पर्सन, मतलब वो क्रिएटिव है, मतलब वो इंटेलिजेंट है, दैट इज टर्म्ड एज एड्रॉइड, राइट। नेक्स्ट है ऑडेशियस। ऑडी वाली गाड़ी लेकर बाहर निकले हैं तो बहुत पर्सन रिस्की है, डेयरिंग है, दैट इज ऑडेशियस। नेक्स्ट इज बेनीवोलेंट। बेनी मतलब अच्छा, दैट इज वोलेंट मीन्स वॉलंटरली, तो वॉलंटरली किसी के लिए काइंड है, आप हेल्प कर रहे हैं, दैट इज बेनीवोलेंट। बेनाइन, बी नाइन, बी नाइस, जब आप दूसरों के साथ नाइस हो जाइए, आप किसी का हार्म नहीं कर रहे हैं, दैट इज टर्म्ड एज बी नाइन, आप सबसे अच्छे हैं, जेंटल हैं। कैप्रिशियस, कैप डाल के रिच पर्सन, ट्रम्प याद कीजिए, और वो डिफरेंट डिफरेंट मूड्स में, फोटोज में पिक्चर क्लिक कर रहा है, तो उसका क्या है, सडन चेंजेस ऑफ बिहेवियर आ रहा है। चार्लेटन, चार लाते हैं, बोला इस पर्सन ने है, नहीं हो सकती, फ्रॉड है ये पर्सन। नेक्स्ट इज कॉपियस, बहुत ज्यादा कॉपीज हैं इसके पास, मतलब कोई चीज जो ह्यूज अमाउंट में एग्जिस्ट करती है। क्रेडुलस, क्रेडिट कार्ड को पैसे वापस देने पड़ते हैं, दे विल सेल यू इन एनीथिंग, तो क्रेडुलस मतलब जो पर्सन बेचारा गुलेबल है, नेव है, जिसको नहीं पता है, दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाता है, दैट इज टर्म्ड एज क्रेडुलस। क्रो जो था वो फॉक्स की बातों में आ गया, तो दैट इज क्रेडुलस। डर्थ, अर्थ, अर्थ में चीजें खत्म हो रही हैं, ओवर एक्सप्लॉइट हो रही हैं, स्कार्सिटी आ रही है। डी अर्थ, डी नेगेटिव के लिए आता है, तो आता है स्कार्सिटी ऑफ थिंग्स। डेलिनेट, डी लाइन, लाइन ड्रॉ कीजिए भाई, बाउंड्री ड्रॉ कीजिए, सो दैट इज डिस्क्राइब करना किसी चीज को इन ग्रेट डिटेल, बाउंड्री ऑफ समथिंग, सो दैट इज टर्म्ड एज डिलिनेट। एफर्मल, ईथर से ई याद करना था, ईथर, एफर्मल, तो मतलब क्या आ जाता है, दैट इज टर्म्ड एज कोई चीज है जो बहुत छोटे टाइम के लिए एग्जिस्ट करती है, दैट इज एफर्मल। नेक्स्ट इज एरोडाइट, डाइट ब्राइट, एरोडाइट दैट इज ब्राइट, तो कोई पर्सन जो ब्राइट है वो एजुकेटेड भी है, बहुत अच्छा स्कॉलर है, बहुत इंटेलिजेंट है, दैट इज टर्म्ड एज एरोडाइट। देन इट वॉज फैलेशियस। फैलेशियस में फॉल कब होगा, जब हम झूठ बोलेंगे, तो दैट इज जब आप कोई अनसाउंड रीजन आप झूठ बोलते हैं, दैट इज टर्म्ड एज फॉलेशियस। अच्छा, फास्टिडियस क्या हो जाता है, मतलब कोई पर्सन फास्ट भी है और टीडियस भी है, मतलब बड़ी जल्दी जल्दी सफाई करता है, मेहनती है, छोटी छोटी डिटेल्स पे आप ध्यान देता है, दैट इज फास्टिडियस, तो बहुत ध्यान से एक्यूरेसी से चीजों को करना। गैरुलस, गर याद करो, दैट इज जब गराना, तो दैट मीन्स बहुत बोलना, तो दैट इज जो पर्सन बहुत ज्यादा बातें करता है, बोलता है अननेसेसरली, दैट इज गैरुलस। नेक्स्ट इज ग्रिगेरियस। GRE का एग्जाम है, वो दूसरी कंट्रीज में जाने के लिए हेल्प करता है, तो आपको सोशल बनाता है, तो दैट इज ग्रिगेरियस।
गाइल, यू लाई, मतलब आप जब किसी के साथ धोखा दे रहे हो या धोखा कर रहे हो आप एक तरह का, विद यू कैन से डिसऑनेस्ट मीन्स दैट इज टर्म्ड एज गाइल। हैजी मनी, भाई हमारे पास हैगी मनी, सो वी हैव मनी, वी हैव पावर, हम अथॉरिटेटिव हैं, दैट इज हैजी मनी। नेक्स्ट इज हीनियस, हाइना से याद करना था, जब आप बहुत बुरा हो, विकेड हो, बहुत चालाकी से, सरप्राइजिंगली शॉकिंग है, दैट इज हीनियस। एम्पेड इन स्टैम्पेड, एम्पेड इन स्टैम्पेड मीन्स जब बहुत ज़्यादा रश होता है, स्टैम्पेड में आप मूव नहीं कर पाते हो, तो आपके पाथ में क्या है, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, दैट इज एम्पेड। इंसीडियस, इनसाइड, इनसाइड क्या है, कुछ केमिकल्स हैं, कुछ हार्मफुल चीज़ें हैं, तो ग्रेजुअली जब हार्मफुल इफेक्ट्स के साथ चीज़ें प्रोसीड करती हैं, दैट इज इंसीडियस, कॉजिंग हार्म आ जाता है। नेक्स्ट जॉवियल, जॉवियल का मतलब जॉय करना, चीयरफुल होना, तो दैट इज व्हेन यू आर हैप्पी, दैट मीन्स यू आर जॉवियल। नेव, नेव किससे साउंड करा था, केव से, जो केव में पर्सन बैठा है वो डिसऑनेस्ट है, तो दैट इज अ पर्सन हु इज डिसऑनेस्ट, ही विल बी डूइंग सम काइंड ऑफ अ बैड और नेगेटिव थिंग्स ओवर देयर। लैंग्विड, अब लॉन्गिंग तो बहुत करते हो कुछ करने की, लेकिन आप कुछ नहीं करते हो, तो लैंग्विड मीन्स लैंग्वेज, एंड दैट मीन्स दैट यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, आप कुछ भी फिजिकल एफर्ट नहीं कर रहे हैं, आप रिलैक्स बैठे रहते हैं, लेकिन आप कहीं अनसफरिंग और बुरी तरह से आप कंडीशन में, मतलब लेजी टाइप ऑफ पर्सन आ गया। नाउ दीज आर सम वर्ड्स जो मैंने आपको निमोनिक से सिखाए हैं, बट लेट्स लर्न 2-3 मोर वर्ड्स, तो आपको यहाँ से मोर देन 25 वर्ड्स से अब ज़्यादा आपको याद हो जाएंगे। तो दैट इज एब्रोगेट, आप इसमें से याद कर लीजिए, जैसे अबॉलिश याद कर लीजिए, कैंसिल करना याद कर लीजिए, वॉइड याद कर लीजिए, क्वैश, रिवॉक, इनमें से 2-3-4 वर्ड्स आप याद कर लो, व्हाटएवर इज कंफर्टेबल फॉर यू, क्योंकि ये सिनोनिम्स की फॉर्म में पूछे जाए। तो एब्रोगेट का मतलब कैंसिल कर देना, किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हो, क्वैश कर रहे हो, किसी चीज़ को रिवोक, अबॉलिश, बेसिक याद कर लो, अबॉलिश, कैंसिल, वॉइड और क्वैश, दीज आर सम वर्ड्स जो आप याद कर लेना। नेक्स्ट आ रहा है एड्रॉइड के लिए, you can remember skilled person, cunning person, adept, adept is also जो क्या है, बहुत ज़्यादा skilled है, ADEPT, adept होता है, that is also skilled, तो dexterous हो गया, adept हो गया, skilled हो गया, cunning हो गया, that is adroit। adroit कौन था, जो drawing अच्छा करके मतलब एक smart person है। audacious, ऑडिशियस कौन सा था, ऑडी लेकर मतलब बोल्ड होना, डेयरिंग होना, फियरलेस होना, ये वर्ड्स आप याद कर लो ऑडिशियस के साथ। वेंचरसम आ गया, एडवेंचरस आ गया, दैट इज ऑडिशियस। बेनिवोलेंट, दैट इज समथिंग दैट इज हेल्पिंग अदर्स। फिलैंथ्रोपिक, चैरिटेबल, काइंडली, सिंपैथेटिक, राइट। सो बेनेवोलेंट का क्या हो गया, फिलैंथ्रोपिक, चैरिटेबल, काइंडली एंड सिंपैथेटिक, जनरस हो जाते हैं। बिनाइन मतलब काइंड होना, माइल्ड होना, दैट इज वेरी गुड एंड वेरी सॉफ्ट टू अदर्स, हार्मलेस टू अदर्स। देन इज कैप्रिशियसली, दैट इज जब आप केयरलेसली कोई चीज कर रहे हैं, आर्बिट्रेरीली कर रहे हैं, दैट इज कैप्रिशियसली, मतलब जल्दी जल्दी से चेंज कर रहे हैं आप, तो आर्बिट्रेरीली क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस लाना, सो दैट इज आर्बिट्रेरीली। नेक्स्ट इज शार्लेटन, शार्लेटन मैंने बताया था जो फ्रॉड होता है, जो चीटर होता है, फेक होता है, प्रिटेंडर होता है, दैट इज शार्लेटन। कॉपीज जो बहुत ज़्यादा है, कॉपीज तो मतलब ज़्यादा है अमाउंट में, तो दैट इज एम्पल, प्लेंटिफुल, बाउंडफुल, रिच, ये सारा आ गया कॉपीज। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए क्रेडुलस। क्रेडुलस का मतलब क्या होता है, जब आप किसी पे विश्वास कर देते हो, मतलब आप एडमिट कर रहे हो, ट्रस्ट कर रहे हो, कंसीडर कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो आप बहुत नहीं हो, आप जल्दी से किसी की बातों में आ रहे हो, राइट। KNAVE और NAIVE में फर्क होता है। डर्थ है, दैट इज लैक होना, शॉर्टेज होना, दैट इज स्कार्सिटी होना। डिलीनेट, डिस्क्राइब करना, आउटलाइन करना, प्रेजेंट करना, ट्रेस करना। एफर्मल, दैट इज ट्रांजिटरी, ट्रांजिएंट, टेम्पररी, शॉर्ट लिव्ड, थोड़े टाइम के लिए कोई चीज एग्जिस्ट करना। erudite, that is learned, scholar, intelligible, literary wise, that is erudite. Then is your fallacious, false, unsound, deceptive. Fastidious, बहुत ध्यान से करने वाला चीज़ों को, choosy, finicky, nice, that is dainty. Garrulous, loquacious, talkative, gabby, mouthy, verbose. Then is gregarious, that is sociable, companionable, communicative, outgoing. Then is your guile, who is very cunning, very deceiving, crafty, artfulness, deceitfulness. Hegemony, that is domination, supremacy, leadership, that is hegemony. Heinous, that is abominable, atrocious, outrageous, revolting, monstrous. Impede, that is to hinder, to block the way, to stop the path, that is to impede. Insidious, that is sly, crafty, inside there is a harmful effect that is growing, so tricky. Jovial, full of joy, gay, mirthful, happy. Cheerful,
Knave, that is someone who is scoundrel, swindler, scamp. Jack, rogue, that is knave. Languid, that is person who is lethargic, torpid, slow, languorous, listless. So all these words are important, and I hope by the end of this video you are able to revise certain words in your vocabulary, in your mind, in your consciousness. So all the best guys, this is the first trick which I told you to learn a few words. I'll be coming soon up with some new videos which can help you in retaining the words. Any other video or any other topic of your choice, you can just put up in the comment section so that I can help you out in learning the words in that particular section. So all the best guys, have a good day, and I hope you find the video useful. And also the documentation of this video is available on the panel. Please go through the documentation, download it out, and you just start mugging it on your own sense also. It's going to help you guys. All the best, take care and have a good day.